been in the data field for like 8 years now. मेरी पहली job was after a BBA though, but मेरी पहली job was as a strategy analyst, shifted to AI and Affinity, went for a master's in business analytics, came back, worked with Love for Data, I've been teaching at IBA, ये मेरा student रहा है, इसने मुझे कभी केक नहीं खिलाया नौकरी मिलने का, but yeah, so my journey is sort of unique in the sense कि आपको BBA करके बहुत से लोग data science में आते हुए नहीं मिलेंगे, right? So the topic for today is also how to merge data with business, ठीक है? Data with business. So, and I'm assuming most of you are from the CS or from a technical background, right? So the one thing that is different for CS grads compared to let's say business grads is you like structure. तुम लोगों को ना flow charts पसंद हैं, तुम लोगों को steps पसंद हैं, हमारी तरह नहीं है कि नहीं we think, I think वाले जवाब ना BBA में बहुत होते हैं, CS में नहीं होता, तो I think this is right नहीं चलता, so you need flow charts, you need a process, right? So what we are going to do today is to map out the life cycle of a data science project, ठीक है, and identify कि यहाँ पे analytics का क्या component है और business का क्या component है, ठीक है, and how does business sort of come in and interplay with this, ठीक है. So let me put you on the spot. What is the life cycle for a data science project? How does a data science project start? What is the first thing? Okay. So there's a problem statement, right? Acha, okay. Let's talk about this for a bit. Problem statement कहाँ से आती है? Okay. कौन कौन stakeholder होता है? So comes from stakeholders, okay. And I have a point for this, okay. And the stakeholder comes in sort of like you would have a CEO or let's say any C-level employee, right? And then that goes down to management. And then that goes down to your tactical team or whatever you want to call it, जो आपका lower level office staff है, right? Problem हमें देता कौन है? ये, ठीक है? तुम्हारे मॉडल को अप्रूव कौन करता है? ये, ठीक है, आपके मॉडल को अप्रूव ये वाला बंदा करता है, क्योंकि इसके पास टाइम नहीं है और ये जो लेवल है ना पाकिस्तान में, ये सुस्तरीन लेवल है, ये कुछ नहीं करना चाहता, ये चाहता है सिर्फ यहाँ से काम है और ये आगे बता दे कि मैंने किया है, वो ये भी नहीं बोलेगा कि मैं इसने किया है, वो बोलेगा मैंने किया है, ठीक है. तो ये अप्रूव करता है, ये जो है तुम्हारा प्रॉब्लम लाता है, इसका मसला क्या है? तुम इसकी नौकरी खाने बैठे हो, ठीक है. So whenever you go to a business, the first thing you need to understand when you are bringing any sort of an analytics initiative is कि इसकी नौकरी पे लात नहीं मारनी है, ठीक है. And I'll give you an example. हमने एक बेकरी के लिए काम किया, ठीक है, let's say Delizia because it wasn't Delizia, ठीक है. उन्होंने बोला हमारे पास वेस्टेज है दिन का 20%, केक बनता है, ज़्यादा बन गए, फिक गया. एक तो आप बासी पेस्ट्री, बासी केक किसी को खिला नहीं सकते, फिक गया, देयर ज़ीरो सैल्वेज, ठीक है. ओके, आप हमारे लिए मॉडल बना दें. हमने बना दिया, हमने बोला आपकी सेल्स प्रेडिक्शन का मॉडल ये रहा, आपका थ्रो अवे रेट जो है वो गिर के 10% पे आ जाएगा 20% से, ठीक है. कभी प्रोजेक्ट अप्रूव ही नहीं हुआ, मॉडल आज तक के बना हुआ रखा उस कंपनी का, कभी प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ, कभी डिप्लॉय नहीं हुआ. वजह क्या है? अगर मैं बता दूंगा कितने केक बनाओ तो ये क्या करेगा? जो इनका एरिया सेल्स मैनेजर बैठा है वो क्या करेगा अगर मैं बता दूंगा कि कितने केक बनाओ, राइट. सो एक चीज़ जो हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं वो यही है कि देयर इज अ सॉर्ट ऑफ अ पॉलिटिकल लेआउट टू एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना. प्रॉब्लम डजंट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट विद स्टेक होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं. तो एक बात है. सो one of the things that you must keep in mind whenever you take up a data analytics project is कि इस बंदे को आपने ऐसे पिच करना है कि this is only there to help you. How do you do that? You leave inputs in your model. Never make a model completely automated in Pakistan. Because जब तक कि इसको ये लगेगा ना कि यार मैं इसके अंदर डेटा फीड करूँगा, मैं थोड़ा डेटा क्लीन करूँगा, तो जाके जो है ये मॉडल चलेगा, तो इसकी नौकरी सेफ है. इसकी नौकरी सेफ है, तुम्हारा प्रोडक्ट प्रूव होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है. अच्छा,
But that's slightly off topic in the sense of, well, that doesn't talk about data in business in general. But problem statement अच्छी क्या होती है और बुरी क्या होती है, definitely does talk about data. ठीक है, and it talks about business. वजह क्या है? How many types of problems exist? Any data problem targets one of three things in a business cycle. ठीक है? The first one is either revenue or profit. ठीक है? The second is risk. The third is growth. ठीक है? If it does not fall into one of these value zones, आप जो चाहे कर लें अपने डेटा के साथ, वो प्रोजेक्ट किसी काम का नहीं होने वाला. ठीक है? अच्छा, what do I mean by that? You will often find projects जो कि इन तीनों जोन्स को हिट नहीं करते. ठीक है, एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल. हमारे पास आया एक माइक्रो फाइनेंस बैंक. ठीक है, अच्छा, माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट सबको पता है. 50,000 का लोन है, 50,000 से ज़्यादा का लोन नहीं देते, हाई रेट ऑफ रिटर्न है. ग्रामीण बैंक ने कभी स्टार्ट किया था, उनका तो 99.7% शायद रिटर्न रेट था. दे नेवर हैड अ डिफॉल्ट. ठीक है, वी सॉर्ट ऑफ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट दैट मॉडल इन पाकिस्तान. इट्स बीन गोइंग ओके. ठीक है, उन्होंने हमें बोला हमें ये प्रेडिक्ट करके दे दो कि कौन सा बंदा लोन पे बैक करेगा, कौन सा नहीं करेगा, रादर कौन सा बंदा डिले करेगा लोन और कौन सा नहीं करेगा. ठीक है, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग. उनका जो डिफॉल्ट रेट था वो था 5%. ठीक है, उनका इंटरेस्ट रेट था 30%. इस मॉडल पे इन दो चीज़ों पे काम नहीं हो सकता मेरे ओपिनियन में. यू कैन डिसएग्री विद दैट. इस मॉडल पे इन दो चीज़ों पे काम नहीं हो सकता. उसकी वजह है, तुम जब 30% इंटरेस्ट चार्ज करते हो, राइट, चलो तुमने बोला यार मेरा 50,000 का लोन है, हम कंपाउंडिंग वगैरह की बात नहीं कर रहे, सिंपल लोन है, सिंपल इंटरेस्ट पे ऑफ होगा, 65,000 पे आउट होगा, राइट. जो डिफॉल्ट करता है वो कितने का नुकसान करवाता है तुम्हारा? 50,000 का. यू कैन एक्चुअली अफोर्ड वन डिफॉल्ट पर 4 गुड लोन्स. अग्रीड. 15 का मुनाफा है, 15 चौक 60, 50 अगर खो भी गया, खल्ली वल्ली 10,000 का मुनाफा है. अग्रीड. जो ऑलरेडी 5% का डिफॉल्ट रेट बैठा है उसका तुम और कितना गिरा दोगे? इसके पास रिस्क बहुत मिनिमल है अभी. ठीक है, इसका रिस्क मिनिमल है, इसने रेवेन्यू ऑलरेडी अपना फिक्स किया हुआ है. अनलेस यू ब्रिंग इन मोर पीपल, व्हाट इज द ओनली प्लेस यू कैन टारगेट? ग्रोथ. टॉक अबाउट के नया कस्टमर कहाँ से आएगा, टॉक अबाउट के कौन सी नई प्रोडक्ट ऑफरिंग हो सकती है जो कि एक्चुअली आपका कस्टमर बेस को एक्सपैंड करेगी. राइट, दिस प्रोजेक्ट नेवर वेंट लाइव. उसकी वजह यही है, वी हैव अ मॉडल जो कि अराउंड 80% रिकॉल, 80% प्रिसीजन, वेरी गुड मॉडल बाय ऑल स्टैंडर्ड्स. आप एरिया अंडर द कर्व निकालना, आप ये करना, आप वो करना, एवरीथिंग इज गुड. मैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं शो कर सकता. मैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए नहीं शो कर सकता तो जब मैं इनको बोलता हूँ क्या लोन रिजेक्ट कर दो, ऑब्वियसली इफ आई हैव अ मॉडल, राइट, मैं कुछ फॉल्स पॉजिटिव्स भी होंगे, राइट, जिनका मैं बोलूँगा यार ये बंदा डिफॉल्ट करेगा, जबकि वो डिफॉल्टर नहीं था. उसको लोन ना देने से इतना नुकसान हो जाता है कि अगर एक आध डिफॉल्ट कर भी जाता मसला ही नहीं था कोई. ठीक है, सो व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हर हाल में इन 3 जोन्स में होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो वो प्रोजेक्ट कभी आगे जाने वाला नहीं है. अगर जोन गलत आइडेंटिफाइड है विद द क्लाइंट तो भी प्रोजेक्ट कहीं नहीं जाने वाला. उन्होंने अपनी जोन रिस्क रखी हुई थी, दे आर लाइक हमारा डिफॉल्ट रेट गिरा दो, मगर हम डिफॉल्ट रेट गिराने गए तो जितना नुकसान हो रहा है वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज उसकी ये जोन नहीं है. ठीक है, उसकी जोन ये है. तो एक तो ये कि इन 3 जोन्स का होना जरूरी है और उसका आइडेंटिफाइड होना जरूरी है. अगर आइडेंटिफाइड नहीं है तो इट इज योर जॉब टू मेक श्योर दैट दे आइडेंटिफाई इट. ठीक है, अच्छा, सो देयर इज दैट. So problem statement coming from a stakeholder, we need the right value zone. अच्छा, why am I putting this here? Because हम लोग जब कोई भी डेटा साइंस प्रोजेक्ट करते हैं, हमारा पता है क्या होता है, हम डायरेक्ट बात करते हैं KPI की, और हमारे KPI क्या होते हैं? रिकॉल, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, ब्ला ब्ला ब्ला.
आपको जो एक CS की क्लास में बिठा के इंट्रो टू डेटा साइंस के लेक्चर में किसी टीचर ने बोल दिया था ना कि एक्यूरेसी अच्छा है या F स्कोर अच्छा है या रिकॉल अच्छा है, प्रिसीजन अच्छा है, आप उससे आगे निकले नहीं, ठीक है। मगर जो सेठ बैठा होता है ना कमरे में, बोलता है मैं आज लेके आया था 5 लाख रुपए, आज जाते आते 5.5 हो गया तो मैं खुश हूँ, आज जाते आते 4.85 हो गया तो मेरा फड्डा है तुमसे, ठीक है। तो हमारा KPI सही होना चाहिए, द KPI नीड्स टू फॉल इन वन ऑफ दीज, राइट, एंड दैट ओनली कम्स फ्रॉम बिजनेस नॉलेज, दैट ओनली कम्स फ्रॉम टॉकिंग टू स्टेक होल्डर्स एंड फाइंडिंग आउट क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। दैट ओनली कम्स फ्रॉम टॉकिंग टू स्टेक होल्डर एंड फाइंड आउट कि जो तुम सोल्यूशन देने वाले हो वो एक्चुअली जाके कहाँ पे एक्ट करेगा, किस जोन को हिट करेगा। व्हेन यू डू दैट देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, द नेक्स्ट स्टेप इज समथिंग जो कि हम लोग जो कि बहुत धक्के खा के सीखा है मैंने एज अ डेटा साइंटिस्ट। मेरा काम प्रपोजल्स बनाना भी होता था। इनफैक्ट ये जो बैठा हुआ ये मेरा मजाक उड़ाते थे सारे कि आप तो सारा दिन ईमेल लिखते रहते हैं और प्रपोजल बनाते रहते हैं, तो ये चीज़ मैंने प्रपोजल्स बना बना के सीखी है, और वो ये है कि आपका सक्सेस क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम डिफाइन करते हुए सक्सेस क्राइटेरिया नहीं पता तो यू आर वॉकिंग इनटू ट्रबल, ठीक है। वजह क्या है? अच्छा, हमें एक बैंक ने बुलाया और ये टाइमर जरदारी वाला वो बेनामी अकाउंट्स आ गए, ओमनी ग्रुप का केस हो गया, कैश बॉय ने उठाया कैश ले जाके जो है जमा करा दिया दूसरे अकाउंट में। एंड यू नो इफ़ यू नॉट रेड दैट रिपोर्ट यू शुड, because that will really highlight all of the gaps in the data structures of your banking system, which is a really scary thought, ठीक है ना। one of the core reasons why you are still in the grey list, या शायद अभी निकल गए हम grey list से, but one of the core reasons was कि हमारे पास डेटा ही नहीं है, ठीक है। उसने हमें आगे बोला हमारे लिए वो वाले बंदे आइडेंटिफाई कर दो जो कि एक ही CNIC है मगर 2 अलग अलग नामों पे अकाउंट खुला हुआ है। तो मेरा CNIC है, एक है हसन खालिद और एक है जी जोरान के नाम पे अकाउंट खुला हुआ है। बिकॉज हो क्या रहा है कि इनमें से कोई एक बात सही है कोई एक गलत है एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर समथिंग इलिसिट, ठीक है। ठीक है, निकाल देते हैं। आपके ख्याल से कितने अकाउंट निकले होंगे? टेक अ वाइल्ड गेस। समथिंग लाइक दैट, दैट्स अ वेरी गुड गेस। 10 मिलियन अकाउंट थे, तकरीबन 1 मिलियन आइडेंटिफाई हो गए थे। अच्छा, उसमें फॉल्स फ्लैग्स भी बहुत हैं, क्योंकि हुसैन महमूद का एक अकाउंट मार्केट लिटिक्स के नाम पे भी होगा, CNIC उधर भी जमा करवाया होगा, तो फॉल्स फ्लैग्स भी हैं, ठीक है। कट कटा के भी 1.5, 2 लाख 3 लाख अकाउंट्स रहते हैं, ठीक है। उसूलन आई एम सक्सेसफुल। तुमने मुझसे पूछा कि CNIC पे 2 अकाउंट खुले हुए हैं, मैंने तुम्हें बता दिया कि CNIC पे 2 अकाउंट खुले हुए हैं, मैं सक्सेस क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं था। उसने बोला ये तो 2 लाख तो बहुत है, मुझे तो शॉर्टलिस्ट करके दो जिसके ऊपर तुम्हें सर्टेनिटी है कि मसला है। अच्छा, उसका बाद मुझे शॉर्टलिस्ट करके दो कि किसका टर्नओवर ज़्यादा है क्रेडिट और डेबिट में, तो मुझे शॉर्टलिस्ट करके दो कि किसके KYC में कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ है। हुआ क्या? वजह क्या है? एक तो ये कि व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स, राइट, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है इवन व्हेन डिफाइनिंग सक्सेस क्राइटेरिया कि इस स्टेक होल्डर का सक्सेस क्राइटेरिया बहुत वेरी कर सकता है। SBP फाइन मारता है जब ऐसे कोई भंड निकले। SBP जब फाइन मारता है तो मेरी जेब से पैसा थोड़ी जाता है, ठीक है, बैंक देता है, तो CEO झाड़ता है, ठीक है। SBP खुश कब होगा? जब तुम खुद जाके बोल दो यार हमारे पास इतने सारे अकाउंट्स हमने बंद कर दिए, वी आर वर्किंग ऑन इट, राइट। तो व्हाट दे वांट इज समथिंग मोर एक्शनेबल। वो तुम उन्हें 100 अकाउंट भी दे दो जो कि वो बंद कर दें, ताकि वो जाके कल को मुंह दिखा सकें कि देखो वी आर वर्किंग ऑन इट। उनका सक्सेस क्राइटेरिया एट दैट पॉइंट फेस सेविंग, उनका सक्सेस क्राइटेरिया पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर को ठीक करना नहीं है, राइट। सक्सेस क्राइटेरिया की डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है ना। फिर बेकरी वाला प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि भाई नहीं ये तो इतना एक्यूरेट नहीं है, हमें तो और एक्यूरेसी चाहिए। भाई कितनी एक्यूरेसी चाहिए? ये कहीं डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सक्सेस क्राइटेरिया नीड्स टू बी डिफाइंड। अगेन दैट कम्स फ्रॉम बिजनेस नॉलेज, ठीक है ना। अनलेस यू अंडरस्टैंड कि बिजनेस स्टेक होल्डर क्या चाहता है, तुम डेटा लेकर कि सक्सेस क्राइटेरिया नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन हो गई, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? यूजुअली डेटा कलेक्शन, राइट। सो ओके,
हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा भंड ये है कि ये बोलते हैं आप बताओगे कि क्या डेटा चाहिए। भाईजान तुम एक कंपनी चला रहे हो पिछले 75 साल से, तुम उस इंडस्ट्री में बैठे हो, तुम्हें उसके सारे स्टेक होल्डर जो है तुम्हारे पास स्पीड डायल पे हैं, सारी बड़ी डिफरेंट कंपनी हमारे पास स्पीड डायल पे, मैं कैसे बताऊंगा मुझे कौन सा डेटा चाहिए? ठीक है, डेटा कलेक्शन आइडियली या डेटा की एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन को अगर आप अलग भी कर दो फ्रॉम लाइक आइडेंटिफाइंग के क्या चाहिए एंड देन निकाल के देना आर टू डिफरेंट थिंग्स। डेटा की आइडेंटिफिकेशन के कौन कौन सा डेटा चाहिए, आइडियली दो लोगों का काम है। एक आपका डेटा साइंटिस्ट बैठेगा जो कि इंडस्ट्री रिपोर्ट्स पढ़ेगा, जो कि इंडस्ट्री ट्रेंड्स देखेगा, जो कि मैं देखता था, तुम लोगों ने कभी कदर नहीं की, ठीक है ना, मेरा मजाक ही उड़ाते रहे। वह दूसरा क्लाइंट का बंदा होना चाहिए। ठीक है, डेटा कलेक्शन में बहुत सारे मसले आ जाते हैं। अच्छा, इसके लिए भी आपको बिजनेस का उनका प्रोसेस समझना ज़रूरी है। हमने बेकरी वालों के लिए मॉडल बनाया, एक बहुत ही लॉजिकल सी बात है। अगर मुझे ये प्रेडिक्ट करना है कि कल कितने केक्स बिकेंगे, तो अगर तुम मुझे बता दो आज कितने बिके थे, दैट इज़ अ ह्यूज लाइक बूस्ट फॉर मी, राइट। हमने पूरा मॉडल बना दिया इस बेसिस पे। भाई डेट और सेल्स आई हुई थी, लैग ऑफ सेल्स लिया, रिग्रेशन मॉडल वगैरह का ट्रेन कर दिया। इम्प्लीमेंट करने का पता चलता है कि जी ये तो डेटा अवेलेबल ही नहीं हो सकता इन रियल टाइम। वजह क्या है जी, हमारे पास की सेंट्रलाइज सेल्स सिस्टम नहीं है। हमारा तो राइडर निकलता है हर हफ्ते बाइक पे, ठीक है, वो 30 आउटलेट जाता है और 30 आउटलेट से फिजिकल रसीदें लेके आता है, ठीक है। वो संडे और मंडे लगाता है, वो उसको टाइप इन करता है। आपके पास तो डेटा आएगा 2 हफ्ते के लैग से। तो अगर मैं आज खड़ा हूँ जो कि शायद 13 दिसंबर है, तो मेरे पास जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल हो 30 नवंबर का है। ये बताना किसका काम है? एक तो उनका काम है, मगर आपका काम है उनकी पूरी वैल्यू चेन को मैप आउट करना, उनके पूरे बिजनेस प्रोसेस को मैप आउट करना आपका काम है, वरना आपका प्रोडक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, वरना आपका एल्गोरिथम इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह जब डेटा आते तो ऑब्वियसली आप सैनिटी चेक्स करते हैं, राइट, जिसको आप डेटा क्लीनिंग का नाम दे लो, राइट, ओके। मगर डेटा क्लीनिंग में जब मिसिंग वैल्यू आ गई उसे भरना कैसे, ये कौन बताएगा? ये आपको बिजनेस बताएगा। ठीक है, अच्छा, ये आपको बिजनेस बताएगा इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्लाइंट बताएगा। ये आप खुद भी फिगर आउट कर सकते हैं बाय लुकिंग एट हाउ दैट इंडस्ट्री वर्क्स। ठीक है, सीधा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने प्रॉपर्टी प्राइस प्रेडिक्शन पर बहुत काम किया है। ठीक है, बहुत से अपार्टमेंट्स ऐसे आते हैं जिनका हमें बैल्कनी एरिया नहीं पता। कैसे फिल करोगे इन्फॉर्मेशन? पड़ोसी के घर का बैल्कनी एरिया उठा लो ना। ज़्यादा क्या हो जाएगा, थोड़े ऑफ हो गए ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी 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 ऑफ, राइट। उस बिल्डिंग के सारे घरों का एवरेज ले लो, प्रॉब्लम सॉल्व। अगर बिल्डिंग का एक कॉमन एरिया एग्जिस्ट करता है, ठीक है, होता है, लॉबी वगैरह होती है, अक्सर तुम्हें नहीं मिलेगा वो एरिया, ठीक है। अगर तुम्हें एक भी फ्लैट का मिल जाए उस बिल्डिंग में, तो वही वाला कॉमन एरिया बाकी बिल्डिंग के भी फ्लैट्स का है ना, देयर इज नो अदर कॉमन एरिया फॉर दैट बिल्डिंग। सो अंडरस्टैंडिंग कि डेटा कहाँ से आ रहा है और डेटा किस तरीके से एग्जिस्ट करता है इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू कम टू डेटा क्लीनिंग। ठीक है, अच्छा, मगर वो सब कुछ भी सही है। देयर आर 3 प्लेसेस जहाँ पे आपको बिजनेस नॉलेज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है व्हेन यू आर मेकिंग एनी एल्गोरिथम्स। अच्छा, एक तो वाकई में यही है, व्हेन यू आर मेकिंग द प्रपोजल, बिजनेस को अंदर बाहर से समझना विल हेल्प यू अलॉट। तुम्हें ये पता होगा कि यार कौन कौन सा डेटा मिसिंग हो सकता है, तुम पहले से आइडेंटिफाई कर दोगे कि यार अगर ये मिसिंग हुआ तो मैं काम नहीं कर सकता। ठीक है ना, सक्सेस क्राइटेरिया डिफाइंड होगा, स्टेक होल्डर्स डिफाइंड है, पता है कि कैसे आगे जाके प्रेजेंट करना है। जो दूसरी जगह है ना, वो है फीचर इंजीनियरिंग। अच्छा, मेरे ख्याल से द फ्यूचर ऑफ डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स एज डेटा कंसल्टेंट्स इज नॉट इन मॉडल बिल्डिंग। इफ योर कोर फोकस टिल दिस डे हैज बीन के या मुझे न्यूरल नेटवर्क चलाना आता है, मुझे डीप लर्निंग करनी आती है, मुझे यह आता है, इट्स यूजलेस। 5 years डाउन द लाइन इट्स यूजलेस।
उसकी वजह ये कि मेरा 12 साल का भतीजा, मैं उसे भी ना स्टैक ओवरफ्लो से कोड छापना सिखा सकता हूँ जो तुम सब ने छापा हुआ है, ठीक है। तुम्हारा एक्चुअली जहाँ पे इम्पैक्ट आता है वो फीचर इंजीनियरिंग में आता है, ठीक है। I'll give you 2 or 3 एग्जाम्पल्स। प्रॉपर्टी प्राइस प्रेडिक्शन, ठीक है। मैं तुम्हें एक्चुअल प्रोजेक्ट बताऊँ जिनका मैंने काम किया है। टीम को मॉडल बनाने को दिया हुआ है, पहला मॉडल बनाया, बहुत अच्छा बन गया जी, हसान भाई 75-80% एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है। क्लाइंट बोलता है कि भाई देखो, अगर तुम्हारी, क्लाइंट ने बोला कि अगर तुम्हारे पास किसी भी प्रॉपर्टी की प्राइस मोर देन 15% डिविएट करती है तो वो क्लाइंट मेरे ऊपर सू कर देता है। वो बोलता है कि भाई इसने मुझे गलत प्राइस बताई है, वो केस कर देता है, मेरे हज़ारों डॉलर ठुक जाते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू द करेंसी, ठीक है, डॉलर ठुक जाते हैं। तो ओके, फेयर इनफ। तो अब दैट मीन्स कि उस मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ानी है। हैविंग अ मेप ऑफ 20% मीन्स कि तुम ऑन एवरेज भी 15% से ज़्यादा ऑफ हो ना, ओके। So let me ask you, what are the variables you think that impact a house price? Real estate की प्राइस किस किस चीज़ से इम्पैक्ट होती है? Any ideas? Location, square price of what? वही तो प्रेडिक्ट करनी है, इम्पैक्ट किस चीज़ से होगी? करंट मार्केट, ओके। इनमें से बहुत सी चीज़ों में एक मसला है, आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स बताएं जो कि उस पूरे कॉलम में यूनिक वैल्यू होगी। कंस्ट्रक्शन वैल्यूज अगर मिल जाए दैट कुड बी रियली गुड। मगर इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, इन्होंने बोला मार्केट रेट्स। मार्केट रेट से क्या मतलब है? एंड आई विल बी ऑनेस्ट, ये किसी ने नहीं सोचा था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम 10 लोग बैठे हैं, मैं बोलूँगा तुम बोलोगे हाँ यार ये बताने क्यों आया है, ठीक है ना। बट यार अगर तुम कहीं भी घर ढूंढने जाते हो, तुम सबसे पहला काम क्या करते हो? उस एरिया के ब्रोकर के पास जाते हो, बोलते हैं यार रेट क्या चल रहा है। वो बोलता है भाई पिछले महीने घर बिका है 7 करोड़ का। तुम बोलते हो अच्छा, यानी कि इस एरिया का रेट ये है, राइट। तुम्हारा फिर एक्सपेक्टेशन ये नहीं होती ना कि 1 करोड़ में मिलेगा कर। व्हाट डज दैट मीन? दैट जो बिल्कुल रीसेंट सेल्स हैं, दे आर अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ व्हाट द प्राइस शुड बी। अग्रीड है बात? आप वो वेरिएबल डालें, 95% एक्यूरेट हो जाता है। आपसे उसी एरिया में, उसी बिल्डिंग में जो पिछले 5 फ्लैट बिके हैं उनका पर स्क्वायर फुट प्राइस निकाल लें, एक्सीलेंट प्रेडिक्टर ऑफ प्राइसेस। मगर ये कौन बताएगा जब आप ये समझेंगे कि ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है। व्हेन यू एक्चुअली पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अ बायर, लाइक अच्छा मैं क्या क्या देखता हूँ। दूसरी चीज़, स्क्वायर फुटेज किसी ने बोला, डू यू थिंक स्क्वायर फुटेज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइसेस? हाउ इज इट रिलेटेड? पर स्क्वायर फुट, क्योंकि होता क्या है, द प्राइसेस आर एक्चुअली, अगर मैं वो कंस्ट्रक्टेड है या नहीं है वो वाली बातें मैं साइड पे भी कर दूँ, राइट वैसे, बट अगर वो साइड पे भी कर दें, इफ आई हैव स्क्वायर फुटेज हियर एंड इफ आई हैव प्राइस हियर, तो ये ऐसा नहीं दिखता क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है ना। तुम्हें मैं 1000 गज का बंगला दूँ तुम बहुत खुश हो गए, तो मैं 2000 गज का बंगला दूँ तुम थोड़ा और खुश हो गए, तो मैं 10,000 गज का बंगला दूँ तुम बोलोगे अच्छा यार सही है, मैं करूँ क्या इसका, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। तो जब तुम इतने बड़े डेटा में देखते हो ना, डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, डिफरेंट हाउसेस हैं, कमर्शियल है, वो रेजिडेंशियल है, 25,000 चीज़ें, ये ट्रेंड्स हाइड हो जाते हैं। बट व्हाट इज द एक्चुअल प्रेडिक्टर ऑफ प्राइसेस? स्क्वायर फुटेज इज नॉट। हाँ, मगर प्राइस पर स्क्वायर फुट पे शायद आपको ट्रेंड मिल जाए, राइट। प्राइस पर स्क्वायर फुट माइट बी अ गुड वन, या आप स्क्वायर फुटेज को आप अगर ट्रांसफॉर्म कर दो तो प्रॉबेबली आपको बेहतर मॉडल मिलेगा, राइट। वन मोर एग्जांपल, हमारे पास एक बैंक आया अगेन, हमें अनॉमलस अकाउंट्स डिटेक्ट करने, ठीक है, मीनिंग कि यार जहाँ हो सकता है कि कुछ उल्टा सीधा चल रहा हो, ठीक है ना, फाइन।
I have information about every account. I have every single transaction that has happened. I have their CNICs, their date of births, everything that you can think of. ठीक है. मगर how do you detect a suspicious account? Anyone? What is और ये बात ऐसे तुम्हें भी नहीं पता होगी, even though you worked on it with me. ये बात तुम्हें नहीं पता होगी, but how do you detect a suspicious account? Okay, so the Benford's law that he is talking about says that when numbers occur naturally, somehow they follow a distribution. यहाँ से अगर तुम फ़ोन डायरेक्टरी उठाओ, उसके अंदर ये देखो कि पहला नंबर 1 कितनी दफ़ा आया और 2 कितनी दफ़ा आया, somehow it follows a distribution unless कि आपने नंबर्स को फच किया, वो एनरॉन वालों ने किया था. अगर आप एनरॉन या वर्ल्डकॉम में से किसी एक के ईमेल सहारा उठाओ, उसको पर यही काम करो, तो पता चल जाता है कि फ्रॉड चल रहा है. Fair enough. I don't think that applies everywhere though. You know what the So again, this is where industry comes in. हर बैंक के अंदर एक compliance department होता है. Agreed? Compliance department का काम क्या है? Basically वो आपके transaction को monitor करता है. There are some benchmarks for it, जिसमें हर account के साथ एक risk को associate किया जाता है. Low, medium and high. तो फिर उस हिसाब से जो है number of transactions और उसकी transaction bucket होती है. Agreed. Transaction की एक bucket से ज़्यादा का जो amount fall कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? Okay. इसके ऊपर इसका associate करेगा वो फिर. Good. तो जो suspicious काम कर रहा है वो क्या करता है? Basically वो कुछ laws को violate कर रहा है, money laundering कर रहा है या किसी भी तरह की suspicious activity कर रहा है. नहीं, मगर वो अवॉइड कैसे करता है? वो ऑन बेंचमार्क से नीचे रहता है. Exactly. हाउ डू अवॉइड डिटेक्ट? 10 मिलियन से ज़्यादा की कैश ट्रांजैक्शन एक दिन में नहीं हो सकती पाकिस्तान में. वो 9.5 मिलियन की करता है. तो तुम्हारा फीचर क्या है? तुम्हारा फीचर इन डिटेक्टिंग दीज अकाउंट्स के कौन इसके करीब आया. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात तो तुम लोगों को बताएंगे कि ये जो पेट्रोल पंप वाले होते हैं ना, कभी भी अपने पास कैश नहीं रखते. तो मैंने जब कैश देता ना, इनके पास से हर आधे घंटे पे एक बच्चा बैंक जा रहा होता है, इसलिए इनका यूजुअली अकाउंट बहुत करीब में होता है. जहाँ पेट्रोल पंप है उसका करीब तरीन ब्रांच में अकाउंट होगा. हर आधे घंटे 40 मिनट बच्चा आता है, पूरा कैश जमा करता है, बिकॉज द टर्नओवर इज सो हाई कि वो अगर लेके बैठे रहे रात तक के पैसा, तो वो एक आएंगे जो खाल मांगने भी आ जाते थे. ठीक है. और जो है फिर आपका गेम ऑफ हो जाएगा थोड़ा सा. ठीक है. तो दे सेंड पीपल टू सबमिट द मनी इनटू द अकाउंट्स एवरी 30 to 40 मिनट्स. ठीक है. उनके ऊपर अक्सर फ्लैग्स रेज होते हैं. अच्छा, तुम जो चाहे रूल लगा लो, तुम्हारे पास उनका ऊपर फ्लैग रेज होगा. तो व्हाट डू यू डू? तुम KYC में जाते हो और सारी पेट्रोलियम कंपनीज को निकाल देते हो, सारे पेट्रोल पंप्स को निकाल देते हो. दे आर फॉल्स फ्लैग्स. वो लेजिटिमेट बिजनेस कर रहे हैं, वो 10-10 मिलियन से ज़्यादा एक दिन में ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं, मगर इट्स ऑल लेजिट. ठीक है. तो ओके, देन व्हाट बिकम्स द फीचर टू आइडेंटिफाई दीज पीपल? 1, 50 रूल्स हैं, उन रूल्स के करीब करीब कौन आया. 2, इस टाइप के सारे बिजनेसेस हटाना शुरू कर दो. बाइनरी फ्लैग्स लग जाते हैं जी, पेट्रोलियम का नाम आया, पेट्रोल का नाम आया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. राइट, दैट्स फाइन. व्हाट कुड बी अनदर फीचर? मुझे पता है कि जी एक कौन सी थी, पार्क लेन पकड़ी गई थी ना. पार्क लेन नाम था ना उसका. पार्क लेन जो नवाज शरीफ की थी, जिसके अंदर जो पूरा वो मनी लॉन्ड्रिंग बाहर हुई थी, उसके आई थिंक पार्टी में से किसी की थी, उसकी अपनी नहीं थी. बट खैर, आप उनकी सारी ट्रांजैक्शन उठाओ, जैसे साथ ट्रांजैक्शन किए, दैट्स अ फ्लैग. राइट. और ट्रांजैक्शन ये नहीं है कि जी 100 रुपये दे दिए, इजी लोड कराया था, कार्ड दे दिया. नॉट दैट. पेट्रोल पंप पे दिया था, नॉट दैट. मगर अगर मेरी और इनकी 100 ट्रांजैक्शंस हैं और उनकी एवरेज अमाउंट भी अच्छी खासी है, बिकम्स अ फ्लैग. ठीक है. मैं कौन बताएगा आपको कि फीचर बनाना है? ये आपको उस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो इंडस्ट्री है वो बताएगी. आपको उनकी बैठ के रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी. सो इफ देयर वाज इवन वन पॉइंट ओवर हियर दैट यू डिडंट नो, मुझे इनमें से कुछ नहीं पता था, इन्हें पता नहीं क्यों पता है, ये इनके ऊपर नज़र रखो, मगर मुझे नहीं पता था कि ऐसे कोई कंप्लायंस के रूल्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं. राइट. आप जब इंडस्ट्री को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है. ठीक है. सो दैट्स 2 थिंग्स. राइट. एक ये है जहाँ बिजनेस नॉलेज ज़रूरी है, एक ये है जहाँ पे बिजनेस नॉलेज ज़रूरी है. The third thing where the business knowledge is actually important is model development, but not in the way you think. Model development has 2 aspects to it जो हमें सोचना चाहिए. Number 1, there are problems जहाँ पे सिर्फ prediction important होती है. There are problems जहाँ पे variables important होते हैं, और ये gauge करना बहुत ज़रूरी है. So
फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ और सिर्फ ये प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा बंदा चर्न होने वाला है, ठीक है। आई कैन मेक अ न्यूरल नेटवर्क मॉडल, आई कैन मेक अ डीप लर्निंग मॉडल, डजेंट मैटर। मुझे ये मालूम करना है कि मैं इस बंदे को रोकूं कैसे। आई नीड अ रिग्रेशन मॉडल, आई नीड अ रिग्रेशन मॉडल और अ ट्री मॉडल। वाई? बिकॉज भाई कौन सा कस्टमर कौन से वेरिएबल से इम्पैक्ट हो रहा है, कौन सा वेरिएबल चेंज करने से कितना इम्पैक्ट आता है, ये जो ब्लैक बॉक्स मॉडल्स होते हैं उसमें छुप जाती है बात, ठीक है। दैट इज़ वन प्लेस जहाँ पे आपको एक्चुअली थोड़ा बहुत बिजनेस की रिक्वायरमेंट समझनी पड़ती है, विच कम्स फ्रॉम हियर अगेन कि यार आपने करना क्या, डू यू जस्ट वांट टू आइडेंटिफाई दिस पीपल, सो डू यू जस्ट क्रेडिट कार्ड की जो प्रिडिक्शन होती है कि इसको देना या नहीं देना, दैट इज जस्ट अ सिंपल कि भाई मुझे प्रिडिक्ट करना है तुम्हें देना या नहीं देना, नहीं देना तो नहीं देना, आई डोंट केयर कि क्यों नहीं दे रहा मैं तुम्हें, राइट, इट्स डन, इट्स गॉन। मगर अगर मुझे ये प्रिडिक्ट करना है कि जी हाउ डू आई स्टॉप यू फ्रॉम लीविंग माई टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, then I need the coefficients for individual variables, ठीक है। So it comes from the problem set, but that's still an easy part. एक तो ये उसकी एक वजह है, एक तो ये कि if you can make a regression model, don't make a neural network. I have never hired anyone जिसका पहला instinct ये हो कि मैं deep learning कर लेता हूँ, that guy goes out of the interview round, ठीक है। Because if you can, don't take a hammer to every problem, right, you take a hammer to a nail, not to anything else. So there are problems that are only solvable through deep learning, probably, ठीक है। There are problems that are much better off in Excel with a pivot table, and as CS grads you need to accept that Excel is an analytics tool. It is the number one analytics tool in the industry. It is the number one learned skill on Coursera, ठीक है। बहुत सी चीज़ें pivot table पे भी solve हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें deep learning के बाहर solve नहीं हो सकती, right? So that's easy, you can scale up. आप हल्की चीज़ से स्टार्ट करो, ट्राई अ रिग्रेशन, नहीं चला, ट्राई दिस, नहीं चला, ट्राई दिस, नहीं चला, यू कैन गो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, नॉट अ बिग डील। जो एक चीज़ हम लोग लैक करते हैं वो ये होता है कि हमें एल्गोरिथम्स को कस्टमाइज करना आना चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अच्छा, ये केस इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने कोर्स में पढ़ा रहा हूँ पिछले 4 साल से, तो तुम्हें ये याद होना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं याद हो तो ऐसे आज फायर कर देना, ठीक है। बट सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जी सी, हाँ ये वरना इसका ग्रेड नहीं आया होता। अच्छा, I would never have talked about this, but then I went to my professor and I asked him कि ये मैंने सही किया, गलत किया, अगर तुमने सही किया ये चीज़ ऐसे सॉल्व हो सकती है। So I actually have some sort of backing कि ये चीज़ सॉल्व हो सकती है, ठीक है, जिस तरीके से मैंने की है। There may be other problems. Okay, so you're doing sales prediction, right? Okay. Let's say मैंने एक मॉडल बना भी दिया, ठीक है, this is yesterday's sales, this is today's sales, ठीक है। लेट्स से अच्छा मॉडल बन भी गया, डन, ठीक है। अच्छा, जो क्लाइंट का मॉडल है ना, जो क्लाइंट का तरीका है वो ये है बेसिकली। क्लाइंट यहाँ पे, क्लाइंट बोलता है मैं हर दफ़ा ओवर प्रोड्यूस करूँगा, दैट वाज देयर पॉलिसी। पॉलिसी की वजह थी, पॉलिसी की वजह ये थी कि लेट्स से पेस्ट्री अगर, ठीक है, तो एक पेस्ट्री बिकती है 100 रुपये की, एक पेस्ट्री बनती है 20 रुपये की। अगर तुम में से कभी किसी ने घर में कुकिंग वुकिंग की ये करता है, आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट, यू विल नो कि जो इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट होती है एक्सट्रीमली मिनिमल। तुम और जितना स्केल अप करो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल किक इन, कॉस्ट ऑफ यूनिट प्राइस गोज डाउन। मैं तुम्हें फॉर अ फैक्ट बता सकता हूँ कि जिस कंपनी के लिए हम लोग काम कर रहे थे उनकी 90 रुपये सेल्स प्राइस थी, 18 रुपये कॉस्ट प्राइस थी। मैंने 100 और 20 कर दिया फॉर बेटर इवन नंबर्स, ठीक है ना। दैट मीन्स के प्रॉफिट पर यूनिट कितना हो रहा है, ओके। तो अब आप इसको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझें। उनका पॉइंट यह कि तुमने एक एक्स्ट्रा पेस्ट्री बना ली, आई डोंट केयर, मेरे 20 रुपये फेंके ना, मगर तुमने कम बनाई और एक कस्टमर आया और मैंने उसको ये बोला यार मेरे पास तो नहीं है, ख़त्म हो गई, तो 80 का नुकसान अलग, प्लस वो जाके 12 और लोगों को बताएगा कि यार इस वाली ब्रांच नहीं जाना, इधर नहीं मिलता।
और ये 12 का नंबर आई डेंट मेक इट अप, देयर इज रिसर्च कि व्हेन यू हैव अ बैड एक्सपीरियंस विद द कंपनी ऑन एवरेज यू टेल 12 अदर पीपल, ठीक है। तो 12 लोगों को और बताएगा कि यार इधर नहीं मिलता, नुकसान का रेशो आउट है, ठीक है। विच मीन्स के दिस पॉइंट इज सिग्निफिकेंटली वर्स देन दिस पॉइंट। ओवर हियर आई हैव अंडर प्रिडिक्टेड, ओवर हियर आई हैव ओवर प्रिडिक्टेड, तो दिस गाय इज मच वर्स। ये नहीं होना चाहिए। हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? You need to find out the seasonality. Obviously, the seasonality is one of the impacts. And second thing is you have the errors here. आप इन errors को find out करके उस हिसाब से जो है अपने models को rebuild कर सकते हैं और tune कर सकते हैं further. How? I guess target very. How do you rebuild and tune a model? आप parameter tuning करेंगे उसकी obviously. नहीं, प्रॉब्लम है इधर। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि तुम जितना अच्छा मॉडल बना लो, ठीक है, तुमने बहुत अच्छा मॉडल भी बना लिया, लेट्स से इसका मेप सिर्फ 1% है, ठीक है ना, बहुत अच्छा मॉडल है, देयर इज स्टिल अ बेटर मॉडल अवेलेबल। वजह क्या है कि तुम्हारे मॉडल में इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा रहा कि दोनों टाइप के एरर्स डिफरेंट हैं, ठीक है ना। तो लेट्स रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू अ लिनियर मॉडल, ठीक है। लिनियर मॉडल क्या कहता है कि मेरा जो सम स्क्वायर्ड एरर्स हैं उसको मैं मिनिमाइज करूँगा। आई नो कि अक्सर RMSE की बात होती है, बट लेट्स कीप टू सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स, राइट, विच मीन्स दैट आई एम गोइंग टू मिनिमाइज व्हाट, आई एम गोइंग टू मिनिमाइज द सम ऑफ yi minus yi hat का square, right, where this is the actual sales and this is the predicted sales, right, this is what a linear regression model does। ठीक हो गया। अगर इस मॉडल के तहत 5 यूनिट की ओवर प्रोडिक्शन और 5 यूनिट की अंडर प्रोडिक्शन बराबर है, अग्रीड है बात, तो भले से तुम्हारा मेप 1% पे भी मौजूद है, तुम्हारा मॉडल इस चीज़ को अकाउंट फॉर नहीं करता। तुम जितनी चाहे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर लो, तुम्हारा मॉडल इस चीज़ को अकाउंट फॉर नहीं करता। Obviously, we need to go for different model in that case. What would be the different model? I guess loss function change करना पड़ेगा। Good। लॉस फंक्शन कैसे चेंज होगा? आपको उसको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि वो अंडर प्रेडिक्शन को कम पेनलाइज करे और ओवर प्रेडिक्शन को ज़्यादा पेनलाइज करे। रिवर्स, बट हाँ, सो व्हाट यू डू इन दीज केसेस इज कि आप इधर इंस्टेड ऑफ मिनिमाइजिंग जस्ट दिस, यू मिनिमाइज एंड ये वेट कैसे डिफाइन होता है? दिस वेट इज डिफाइंड एज अ पीसवाइज फंक्शन वेयर यू से इट्स 1 फॉर ओवर प्रेडिक्शन एंड इट्स लेट्स से 4 फॉर अंडर प्रेडिक्शन। Why do I bring this up? अगर आपको ये करना नहीं आता तो आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, विच इज बेसिक हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, राइट, या आप डिफरेंट वेरिएबल्स सोच सकते हैं। नन ऑफ दोज सॉल्व द इशू दैट इज एट हैंड, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग दिस इज की। अच्छा, इसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ने आपको, जो मैंने आपसे माइक्रो फाइनेंस वाली बात की, दैट वाज अ मॉडल जो कि मैंने प्रोडक्शन में जाने से रोका था इनिशियली, और उसकी वजह ये थी कि वंस यू अंडरस्टैंड कि यार एक गलत लोन देने पे 50,000 का नुकसान है, एक सही लोन पे 15,000 का मुनाफा है, और वो रेशो नहीं मैच हो रहा बिटवीन फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव वर्सेस दिस 50,000 एंड 15,000, यू लाइक ये मॉडल तो मुझे लॉस मेकिंग मॉडल है एक, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग हाउ टू चेंज द मॉडल इटसेल्फ, लॉस फंक्शन से खेलना, और लॉस फंक्शन से खेलने के लिए आपको बिजनेस प्रॉब्लम जानना जरूरी है। दिस इज अ रेवेन्यू प्रॉब्लम, this is a revenue problem, right? Revenue maximization करो, again it's one of the growth zones, revenue maximization करनी है, I want to do this then, right? I want to make sure that I'm weighting my errors properly, ठीक हो गया? Okay, so that's the other place जहाँ पे important है। The last place where this is important, then I'm done, and then maybe we can have some Q&A if you have any questions. तो मॉडल बन गया, मॉडल जो है वो आपने हर तरीके से देख लिया, ठीक है। जो एक चीज़ हम लोग लैक करते हैं वो है दैट इज कॉस्टिंग। हाउ डू यू सेट अ प्राइस टैग ऑन अ मॉडल, ठीक है। सो देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू, ठीक है। The ideal thing is पैसा, पैसे से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। If you can
टेल मी कि मुझे कितना मुनाफा हुआ इस मॉडल से, वेल एंड गुड, आप उस हिसाब से प्राइस कर सकते हैं अपने मॉडल को। ओके फाइन, व्हाट डज अफिनिटी डू? अफिनिटी सेज कि यार तुम मेरा एल्गोरिथम चलाओ, तुम्हें जितना मेरी वजह से मुनाफा हुआ उसका 20% मेरा, ठीक है, बट दैट पोजेज एन इशू फॉर अस। उसकी वजह है कि अफिनिटी का जो एल्गो है ना वो ये है कि वो घंटे में 48 मिनट ऑन रहेगा, 12 मिनट ऑफ रहेगा। तो हर घंटे में 12 मिनट ऐसे होते हैं जहाँ पे वो जो आपका कॉल सेंटर है, अफिनिटी इज़ अ कॉल सेंटर सोल्यूशन इन केस यू डोंट नो, उनका जो कॉल सेंटर है वो अपनी नॉर्मल 5-4 राउटिंग कर रहा होता है। जो कॉल पहले आई वो कॉल पहले मिल गई, जो एजेंट पहले फारिग हुआ उसे कॉल दे दी गई। तो उन 12 मिनट्स की परफॉर्मेंस बाकी के 48 मिनट्स की परफॉर्मेंस से मैच करते हैं, विच मीन्स दैट वन ऑफ द की थिंग्स इज बेंचमार्किंग। ठीक है ना? हमारे पास क्या है? हमारे पास सेंसर्ड डेटा है। हमारे पास सेंसर्ड डेटा क्यों? मैंने बोला क्या 5000 डोनट्स बना लो आज, एक्चुअली 5500 बनने थे। कोई काउंटर लेके नहीं बैठा हुआ कि अच्छा एक कस्टमर आया जिसको नहीं मिला, 2 आए जैसे नहीं मिला, 3 आए जैसे नहीं मिला। यू नेवर रियलाइज कि तुम्हारे पास एक्चुअली कितना मुनाफा हुआ। ठीक है, विच मीन्स दैट कॉस्टिंग मॉडल्स बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, तो मैं कॉस्टिंग करते हुए जो एक कॉन्सेप्ट आ जाता है विच इज एक्चुअली फ्रॉम बेसियन डिसीजन एनालिसिस, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, देयर आर 2 थिंग्स वी शुड नो इन एवरी मॉडल। एक है बेसलाइन और एक है परफेक्शन। ठीक है, बेसलाइन इज जहां पे आपका क्लाइंट खड़ा है आज। अगर आज वो बोलता है कि यार मेरा जो है दिन का 20% वेस्टेज है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये तो वो है जहां पर तुम्हारे बगैर है। इन दैट केस परफेक्शन को अकाउंट फॉर करना बहुत आसान है, क्या 0% वेस्टेज होगा, राइट। तुम जहां पे लाए करते हो इधर से इधर तक के सफ़र में जो रेवेन्यू का डिफरेंस है वो तुम्हारा, एंड दैट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द क्लाइंट। ठीक है, अच्छा, मगर इट बिकम्स डिफिकल्ट जब आपकी एक्टिविटी वन टाइम हो। आप टेलको के पास गए, आपने बोला जी मैं आपको बताऊंगा कौन सा कस्टमर चर्न करेगा। आपने एक दफ़ा मॉडल बनाया, वो एक दफ़ा रन हुआ, आपने जो उनके 7-8 मिलियन कस्टमर्स से बोल दिया जी ये 5 लाख हैं जो कि चर्न करने वाले हैं। क्या ये मॉडल सिर्फ एक दफ़ा चलना है? अगर एक दफ़ा नहीं चलना तो ये कितनी फ्रीक्वेंसी पे चलना है? और अगर ये उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं चलता या किसी और फ्रीक्वेंसी पे चलता है तो फिर आप अपना उसमें से प्रॉफिट कैसे अकाउंट फॉर करते हैं? ठीक है, सो आपको अपना गेन अकाउंट फॉर करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि इनिशियली जो स्कोप की बात हुई उसमें लॉक्ड हो कि अगर सक्सेस क्राइटेरिया मीट हुआ तो जी इतना हमारा वन टाइम पेमेंट, आपने हमें 2 करोड़ रुपए देने। ठीक है, मगर जब आप प्रॉफिट शेयरिंग पे आते हैं तो ये चीज़ को मेजर करना बहुत मुश्किल है। देन यू डू व्हाट दीज गाइज डू, यू बेंचमार्क इट। सो व्हाट यू डू इज यू से कि जी हम आपको 5 लाख कस्टमर्स टैग करके देंगे, आप उनमें से 4,90,000 को ऑफर दें जो भी आपने करना है, बाकी 10,000 मेरा टेस्ट सेट है रैंडमली चोजन। आपने उन 10,000 के साथ कुछ नहीं करना है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अच्छा, चांसेस आर द क्लाइंट विल डू इट वंस और ट्वाइस एंड देन यू विल गेट एन आइडिया कि आप कितना मुनाफा बना रहे हैं, एंड देन द क्लाइंट विल जाए भाई मैं क्यों नहीं करूँ उन 10,000 के लिए, तुम फजूल मेरा नुकसान करवा रहे हो। बट इन द इनिशियल स्टेजेस बेंचमार्किंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट यू डू इज आप उधर देखते हैं कि कितना टर्नओवर हुआ, अब अपने उन 4,90,000 जिनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया उनके ऊपर देखते हैं कितना टर्नओवर हुआ, जो डिफरेंस आया वो आपकी वजह से आया, राइट। So costing becomes very important in that sense, right? And this is a huge problem जब आपके पास frequency defined now. So when we went to the telco, this was one of the mistakes that we did which prevented that project from going live. I'm not going to say whether that was here or wherever it was, but I worked for a telco and the mistake that we had was कि उन्होंने बोला कि यार तुमने मेरे 8 मिलियन कस्टमर्स पे रन तो कर दिया, पर मैं तुम्हें कितने दूँ इसके, तुमने तो एक बार कर दिया, जाओ अल्लाह हाफ़िज़। देयर इज़ नो प्री डिफाइंड फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए तो एक अलग बात है, बट व्हेन यू डोंट डिफाइन इट देन यू आर इन ट्रबल, राइट। सो देन यू डू वन ऑफ 2 थिंग्स, या तो आप बेंचमार्किंग करते हैं, आप एक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। बोथ ऑफ दोज थिंग्स डिपेंड ऑन कि आपका इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड क्या है।
ठीक है। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट से मतलब ये इफ़ यू मेक लाइक अ प्रॉपर्टी प्राइस प्रोडिक्शन मॉडल, 6 महीने में ट्रेंड चेंज हो जाएगा, यू नीड टू रीट्रेन द मॉडल, आप रीट्रेनिंग की फीस चार्ज करते हैं, राइट। सो essentially when you go from problem statement to feature engineering to data collection to feature engineering to model building to let's say costing, इस जगह पे आपको business information चाहिए। That's how you make solutions जो कि actually implementable हो, ठीक है ना। You take variables only that are available, ठीक है। वेरिएबल आई नो कि बहुत से तरीके होते हैं वेरिएबल्स पढ़ने के, मैं अपनी क्लास को भी हमेशा ही बोलता हूँ दो ही वेरिएबल अच्छे होते हैं, या तो मेरे कंट्रोल में हो या मुझे पहले से पता हो। एनीथिंग एल्स इज़ नॉट अ वेरिएबल, या तो मैं उसे कंट्रोल कर सकूँ या मेरे हाथ में हो, या मुझे पहले से पता हो, ठीक है। सो फ्रॉम द प्रपोजल टू द डेटा कलेक्शन टू द डेटा क्लीनिंग टू द फीचर इंजीनियरिंग टू द मॉडल बिल्डिंग टू द मॉडल एवेल्यूएशन एंड टू द कॉस्टिंग ऑफ द मॉडल, हर स्टेज में आपका बिजनेस इनकॉर्पोरेट होना ज़रूरी है, ठीक है। लेट मी सी हाउ मच टाइम आई हैव लेफ्ट एंड आई विल टॉक टू यू अबाउट वन मोर थिंग. So yeah, we are good on time. I'll just go for 7 more minutes. There's another way to look at it. Okay, when you're talking about how to incorporate data into business, okay, and that is probably through Porter's 5 forces, if you've heard of them. Okay, Porter's 5 forces. Michael Porter is a huge management ka professor, ठीक है ना. People say he launched his own business and failed, so we shouldn't listen to him, but he has a valid point. Okay? There are 4 things that regulate the rivalry within an industry. Okay? There is the buying power of let's say, so let's start off substitutes. Okay? Substitute products. जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा इंडस्ट्री में, राइट. देयर इज़ द बाइंग पावर ऑफ द बायर्स ऑब्वियसली, राइट, एंड देन देयर इज़ द पावर ऑफ सप्लायर्स. अगर एक ही सप्लायर हो तो आप बहस नहीं कर सकते, अगर एक ही बायर हो तो आप उससे बहस नहीं कर सकते, राइट. एंड देन देयर वाज वन मोर, याद है द फोर्थ वन? I'm assuming complementary goods था या something था. But whenever you're looking at so those 4 basically talk about the rivalry in an industry, ठीक है. These 4 things जो चौथी मैं भूल रहा हूँ, but they all regulate the rivalry in the industry. I think it's the threat of complementary goods, but I'm not sure this day. I won't write it down. The price of some complementary goods or something complementary. हाँ, it is about complementary goods, ठीक है. You need to know कि आप जो काम कर रहे हैं वो इनमें से किस चीज़ को हिट करता है. So this comes in when you are doing something like OR related, ठीक है. आप route mapping कर रहे हैं, ठीक है ना. What does that do? So if you are doing it for Domino's, so they were the pioneers of 30 minutes में 30 minutes on a free delivery, right? What does that do? That hits the threat of substitutes, right? Because you have a competition and आप उससे बेहतर service provide कर रहे हैं, ठीक है. But there are analytics initiatives जो कि buying power buyers और suppliers को hit करती हैं. There's a really good case study by, I think it's something Mountain Care Health Group या Mountain something Health Group है in the US. उनका केस ये है कि so they obviously have doctors, it's a hospital, right? Doctors are extremely brand conscious. मुझे भी नहीं पता था, वही पढ़ के पता चला. They're very brand conscious in the sense कि अगर वो कोई एक particular syringe use करते हैं ना in the operations, वो उसी brand की करेंगे, वो generic नहीं करेंगे. In Pakistan it could be because of other reasons as well. हो सकता है उधर भी यही reasons हों कि जी kickbacks मिलते हैं doctors को, ये मलेशिया जा रहा है डॉक्टर तो जी वो डॉक्टर थाईलैंड जा रहा है, पूरी पार्टी लगाई हुई उन्होंने, एंड दैट्स व्हाई दे आर ब्रांड कॉन्शियस. बट व्हाट दे सॉ वाज कि देयर वाज अ ब्रांड जो कि $700 पर सिरिंज दे रहा था. सिरिंज इज यूज्ड इन ऑपरेशंस, सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल सूचर सिरिंज या समथिंग. दे रैन अ टेस्ट एंड दे सॉ कि यार ये जेनेरिक से बेहतर नहीं परफॉर्म करता. जेनेरिक था
$150 का, ठीक है। दे वेंट टू द डॉक्टर्स, दे सेड के जी आप हमारे साथ इस जेनेरिक वर्जन पे स्विच हो जाएं बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस। डॉक्टर सेड नो, ऑब्वियसली ब्रांड कॉन्शियसनेस है। दे वेंट टू द सप्लायर एंड दे सेड कि आप 150 में दें, या तो आप हमें प्रूव करें कि आप बेहतर हैं, या आप 150 में दें, या हम बैन लगा रहे हैं आपके प्रोडक्ट पे इन आवर हॉस्पिटल। एंड द सप्लायर हैड टू लोअर हिज प्राइसेस एंड दे गेव इट टू देम फॉर 150, ठीक है। देयर इज अदर स्टफ लाइक दैट एज वेल। तो यू नीड टू पुट योर प्रोजेक्ट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ कि आप किस फैक्टर को हिट कर रहे हैं इधर से। अनदर वन ऑफ द केस स्टडीज वॉज कि डॉक्टर्स की एक, हम कंसल्टेंट्स और डॉक्टर्स में एक बात काफ़ी कॉमन है, अगर हम काम अच्छा कर देना बंदा दोबारा नहीं आता, ठीक है। फॉर अस इट्स अ ग्रे एरिया, फॉर द डॉक्टर्स इट बिकम्स वेरी इमोरल, ठीक है। फॉर अस आप कह सकते हो ना, नहीं हम वैल्यू ऐड करेंगे अगली दफा, डॉक्टर क्या बोलेगा, नहीं तो दोबारा खांसता हुआ एंड यू नो सफर फॉर अ वीक और 2 एंड देन वी विल लुक एट ट्रीटिंग यू अगेन, यू कुड बी डेड, राइट। तो उन्होंने KPI चेंज किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि डॉक्टर कितने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, उन्होंने KPI ये रख दिया कि कितने पेशेंट्स 30 डेज में दोबारा आते हैं, परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स हु हैव टू बी रीएडमिटेड विद इन 30 डेज, राइट। आप उधर क्या कर रहे हैं, आप उसकी पावर ले रहे हैं ना, जो डॉक्टर एक ही है, जाना है आपने उसी डॉक्टर के पास, आपने उस सर्विस सप्लायर की पावर को हिट किया, ठीक है। सो अनदर वे टू लुक एट हाउ डेटा इम्पैक्ट्स बिजनेसेस इज टू लुक एट कि आप कौन सी इस फैक्टर को हिट कर रहे हैं, एंड दैट शुड हेल्प यू क्वान्टिफाई कि आपका एक्चुअल मॉनेटरी इम्पैक्ट कितना है, राइट। सो एसेंशियली देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू डू दिस, ठीक है। मैंने आपके साथ ये तो खैर बहुत ही स्मॉल उसमें शेयर किया, बट द वे दैट यू शुड लुक एट इट इज़ कि जी डेटा साइंस का जो प्रोजेक्ट साइकिल है उसमें किस तरीके से हम हर स्टेप पे बिजनेस की जो इंसाइट्स हैं उन्हें लेके चल सकते हैं, एंड वंस यू डू दैट यू शुड सी कि आपका जो प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस रेट है, आपके प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस रेट है, बहुत बढ़ जाएगी, राइट। सो दैट्स अबाउट इट। क्वेश्चंस, कमेंट्स, कंसर्न्स, एनीथिंग, आई एम ओपन।